ایک بلا کی داستان حیرت جو کہ گھنے جنگل میں رہتی تھی، اور جب وہ سامنے آئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے پراسرار چوکی۔ میں جوزف امریکن آرمی سے حال ہی میں ریٹائر ہوا ہوں۔ ویسے تو میں بے شمار مہمات میں حصہ لے چکا ہوں، لیکن یہ مہم میری زندگی کی خطرناک ترین مہم ہے۔ میری عمر 40 سال ہے، بیوی، 2 بچے اور بیمار عمر رسیدہ والدہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ لوگ بوڑھے ہو کر نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں، لیکن میں اب بھی خود کو جوان اور فٹ سمجھتا ہوں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چند ماہ ہی مشکل سے اپنے آبائی قبضے میں فیملی کے ساتھ رہ پایا اور نئی نوکری کی تلاش میں چل پڑا، چونکہ پڑھائی، والدہ کا علاج اور گھر کا خرچہ چلانا کوئی آسان کام نہیں۔ ویسے بھی انسان آخری سانس تک کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ آخرکار مجھے ایک دن انٹرویو کال لیٹر وصول ہوا۔ رات کے کھانے پر سب گھر والے جمع تھے کہ میں گویا ہوا ماما جنگلات کیلیفورنیا والوں نے مجھے نوکری کے لیے بلایا ہے، اور تنخواہ بھی معقول ہے۔ میرے خیال میں اب کافی آرام ہو گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو یہ نوکری جوائن کر لوں۔ میری ماما کافی سمجھدار تھی، انہوں نے کھانس کر جواب دیا، بیٹا، والدین ہر وقت اپنے بچوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، نوکری پر جاؤ، مگر ہر بار جلدی آنے کی سوچنا۔ ویسے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم گھر بیٹھنے والے نہیں ہو، پہلے آرمی اور اب محکمہ جنگلات، یعنی تمہاری پسندیدہ ایڈونچر لائف۔ خیر، سب نے اجازت دے دی اور میں تیاری میں مصروف ہو گیا۔ میں ہتھیاروں پر خاص بھروسہ نہیں کرتا، اسی لیے ہر وقت اپنے ساتھ کمانڈو خنجر ضرور رکھتا ہوں۔ مجھے آرمی لائف سے ہی کمانڈو خنجر چلانے کی مہارت حاصل ہے، جو کہ میں اب تک نہیں بھولا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور آئے دن میڈیا پر ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ انٹرویو کے دوران ایک صاحب نے صاف گوئی سے کہا، دیکھو مسٹر جوزف، آپ کو جس جگہ تعینات کیا جا رہا ہے وہ جگہ انتہائی پرخطر اور پراسرار ہے، یہ کوئی عام جنگلات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے کئی لوگ جان سے گئے اور کچھ لاپتہ ہو گئے۔ مرنے والے افراد میں ہمارے محکمے کے لوگ بھی شامل ہیں۔ جنگل میں ہر وقت وحشی قبائل کے علاوہ خطرناک چرند پرند اور غیر مرئی مخلوق کا خطرہ رہتا ہے۔ میرے چوکنے پر اس نے بات جاری رکھتے ہوئے مجھے خبردار کیا۔ میں نے پراسرار اس لیے کہا ہے کہ مرنے والے افراد کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ پوسٹ مارٹم سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ زیادہ تر افراد ڈر یا خوف کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تو کسی کو بری طرح چیر پھاڑ ڈالا گیا، جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق کسی جانور کی یہ کارستانی نہیں۔ ان جنگلات کی اور بھی کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھاری بھرکم معاوضے اور مراعات دینے کے باوجود بھی کوئی یہ نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے آپ کا پروفائل پڑھا ہے اور آپ کو اس نوکری کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آرمی کی طرح یہاں بھی آپ اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ آفیسر کا خطاب کافی لمبا ہو گیا تھا۔ سچ پوچھو تو ایسی ڈراؤنی باتیں میرے پلے نہیں پڑتی۔ وہاں کچھ ضروری کاغذات سائن کیے اور اپوائنٹمنٹ آرڈر لے کر بس اڈے پر آ گیا۔ محکمہ جنگلات کی ٹوٹل 136 چوکیاں تھیں اور مجھے چوکی نمبر 130 پر رپورٹ کرنی تھی، جو ہمارے شہر سے 4 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھی۔ بس اڈے پر کافی بھیڑ تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ ایک بس وہاں جا رہی تھی، لیکن آدھی خالی تھی۔ شاید وہاں کے لوگ بھی ان جنگلات کی کہانیوں کو سچ مانتے تھے، جس طرح وہ آفیسر بتا رہا تھا۔ خیر، میں تو ان باتوں کو بکواس سمجھتا تھا، مجھے تو صرف اپنی نوکری سے دلچسپی تھی۔ آخرکار بس چل پڑی۔ بس نے خاصا طویل سفر طے کیا۔ چوکی نمبر 130 کی آواز سن کر میں نے اپنا بیگ سنبھالا، مجھے اتار کر فراٹے مارتے ہوئے بس چلی گئی۔ سورج ڈھلنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ راستے کے دائیں طرف سڑک سے ہٹ کر 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی عمارت، جسے چوکی نمبر 130 کا نام دیا گیا تھا۔ ایسے گھنے جنگل میں واحد یہ بوسیدہ اور ویران عمارت سر چھپانے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میرے استقبال کے لیے 2 اہلکار پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے ویلکم کیا۔ میرا نام ڈیوڈ ہے اور میں یہاں کا لوکل ہوں۔ دوسرا بولا، میرا نام میتھیو ہے اور میں بھی لوکل ہوں۔ وہ دونوں میرے ماتحت تھے اور میں ان کا انچارج تھا۔ ایک کمرے میں 3 چارپائیاں پڑی تھی، دوسرے کمرے میں کچن باتھ روم کے علاوہ 3 سرکاری بندوقیں اور کارتوس پڑے تھے، جو ہمیں اپنی حفاظت کے لیے دی گئی تھی۔ وہاں کا بغور جائزہ لے کر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سر، آپ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آج آرام کریں، ہم نے آپ کا کھانا رکھ دیا ہے۔ وہ دونوں مقامی افراد تھے اور سر شام ہوتے ہی واپس اپنے گاؤں چلے جاتے تھے۔ میں یہاں اجنبی تھا، اس لیے چوکی نمبر 130 ہی میرا ٹھکانہ تھی۔ ڈیوٹی کچھ اس طرح تھی کہ دن کو باہر کرسیاں لگا کر باہر آنے جانے والی گاڑیوں اور افراد کی نگرانی کرنی تھی، جبکہ مشکوک افراد کو روک کر پوچھ گچھ کرنا بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے موبائل پر بھی بچوں سے بات کی اور اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا۔ ماما نے بہت ساری دعائیں دی۔ یہاں بجلی بہت کم جاتی تھی، اس لیے دونوں کمرے روشن تھے۔ میں نے پہلے کھانا کھا کر بعد میں سرکاری بندوقیں چیک کی۔ وہ تینوں اچھی کنڈیشن میں اور تیار تھی۔ بعد ازاں میں نے باہر کرسی لگائی اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اکا دکا گاڑیاں نظر آئیں، جبکہ اندھیرا ہونے پر وہ سڑک مکمل سنسان
और वीरान महसूस होने लगी, यानी रात को यहाँ कोई सफर नहीं करता था। फिर मैं काफी देर तक दाएं बाएं जंगल का जायजा लेता रहा और तकरीबन 12 बजे बिस्तर पर आकर दराज हो गया। सारी रात जंगल से जानवरों की आवाजें आती रहीं, लेकिन मुझे खूब नींद आई। मेरे दोनों एहलकार भी बीवी बच्चों वाले थे, इसीलिए वो खाना खाकर आते थे, जबकि नाश्ते से लेकर डिनर तक मैं खुद पकाकर खाता था। यहाँ एक छोटा सा टाउन था जो तकरीबन जंगल में ही वाक़िया था। हर 2 हफ्ते बाद मैं पैदल ही वहाँ से राशन और सब्जी भाजी वगैरह खरीद कर वापिस आता। टाउन के अकलौते बैंक से हर माह या कम को हमें सैलरी मिलती थी। मैं अपना खर्चा निकालकर बाकी रकम अपने घर वालों को भेज देता। 3 माह तक तो सब ठीक चल रहा था, जबकि कभी कभी मैं इस ऑफिसर के बारे में सोचता कि यहाँ आते वक्त किस तरह इसने डरावनी बातें की थी। एक रात अचानक चीख की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। बाहर किसी जानवर के कराहने की मुसलसल आवाजें आ रही थी। मैंने बंदूक उठाई, चौकी से बाहर निकल आया। बाहर को अंधेरा था। जहां से आवाज आ रही थी मैंने वहां का रुख किया। सड़क के किनारे एक भेड़िया का बच्चा शदीद जख्मी हालत में पड़ा दर्द से कराह रहा था। शायद किसी चलती गाड़ी से टकरा गया था। यहाँ अक्सर जंगली जानवर रात के वक्त सड़क पर निकल आते हैं और बाहर जानवर तेज रफ्तार कार वगैरह से टकरा कर या तो मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। मैं मदद के लिए लपका तो वो बच्चा एक आदमजात को अपने करीब पाकर और जोर से चिल्लाया। मैंने फौरन इसे अपने हाथों में उठाया और अंदर कमरे में ले आया, जहां हर वक्त एक फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा रहता है। आज वो दवाई काम आ ही गई। मैंने पायोडीन से इसके जख्म साफ किए और दवाई लगाकर मरहम पट्टी कर दी। थोड़ी देर बाद इसे आराम आ गया और वो सो गया। मैं भी कुछ देर सिगरेट के कश लगाता रहा और फिर मैं भी सो गया। मेरी तरह डेविड और मैथ्यू भी भेड़िए के बच्चे का खास ख्याल रखते थे। हमने इसकी खुराक का खसूसी बंदोबस्त कर रखा था। इलाज के बाद इसके जख्म भी ठीक हो गए थे। अभी वो छोटा था, इसलिए रात के वक्त इसको दूसरे कमरे में बंद करके रखता था ताकि वो बाहर ना निकल जाए और किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाए। बाकी दिन भर वो हमसे खेलता रहता था। काफी माह गुजर गए, इसलिए मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने गांव आ गया। मेरी छुट्टी के दौरान डेविड और मैथ्यू चौकी नंबर 130 में सोते थे और फोन पर इनसे बातचीत भी होती रहती थी। हर दफा वो भेड़िया के बच्चे की शिकायत करते। इनके मुताबिक वो भेड़िया रात के वक्त अचानक जोर जोर से चीखता तो इनके आराम में खलल पड़ता था। खैर मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं सब घर वालों से अलविदा कहकर वापस ड्यूटी पर आ गया और फिर रोज का रूटीन। वो दोनों पहले की तरह सर शाम ही चले जाते थे। कुछ दिनों से भेड़िया रात के वक्त ज्यादा ही शोर मचाने लगा था। मेरे सलाने से वो खामोश तो हो जाता मगर बेचैन जरूर रहता। शायद अब वो बड़ा हो रहा था या फिर जंगल में अपने जैसे भेड़ियों के साथ देना चाहता हो। खैर वजह जो भी हो, मेरे लिए परेशान कुन थी। एक दिन मैं जरूरी सामान लेने के लिए पास वाले टाउन में गया। चर्च से होकर मैं बाजार से जरूरी सामान लाया और वापसी की राह पकड़ी। शाम तो वहीं पर हो गई थी और अब अंधेरा फैलने लगा था। मैं सामान उठाए जंगल के दरमियान पगडंडी से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि ऐसा लगा कि एकदम किसी ने मुझे पुकारा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई ना था। शायद ये मेरा वहम था। खैर मैं दोबारा चल पड़ा। इस मर्तबा यूं ही अचानक पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे देखकर दरख्त की ओर ले ली। मैंने फौरन खंजर निकाला। शायद कोई आदमखोर जंगली ना हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों इस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। लम्हा बलम्हा मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था, लेकिन वहां तो कुछ भी ना था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से किसी बंदे को वहां छुपते देखा था, तो आखिर वो कहाँ चला गया? मैंने खुद कलामी की। जंगल वाकई बहुत खतरनाक था। बहुत करीब से शेर, भालू और हाथी की आवाजें महसूस कर रहा था मैं, इसलिए खंजर हाथ में ही पकड़े रखा और पाँव पर जोर रखा, लेकिन शायद वो भी मेरे ताक़ुब में था। अचानक झाड़ियों में से एक शेर नामुदार हुआ। मेरे पास बंदूक तो नहीं थी और इस खंजर से ऐसे वहशी जानवर से लड़ना बेवकूफ़ी थी। इससे पहले कि वो मुझ पर लपकता, मैं फौरन एक गले दराज दरख्त पर चढ़ गया। शेर काफी देर गुस्से से झाड़ता रहा और मुझे घूरता रहा। वो बहुत भारी भरकम था, इसलिए बड़े दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था। मायूस होकर वो चला गया। मैं काफी देर तक दरख्त पर बैठा रहा ताकि वो वापस ना आ जाए, लेकिन वो नहीं आया और मैं दरख्त से नीचे उतर गया। अब मुझे एहसास हो गया था कि ऑफिसर ने ठीक कहा था कि जंगल पुरखतर है और पुरसरार भी, तभी तो यहाँ कोई नहीं आता। चौकी तक पहुंचने तक जैसे कोई साया मेरा पीछा करता रहा, जबकि भेड़िया भी शदीद चीख रहा था। मुझे देखकर दौड़ता हुआ मेरे कदमों में अपना सर रख दिया। वो मुझसे काफी मायूस हो गया था। आज की रात बड़ी मुश्किल से कटी। सारी रात इन वाकयात को लेकर मैं सोचता रहा और करवटें बदलता रहा। सबको मैंने मैथ्यू और ड्यूड से इस बात का जिक्र किया तो वो सहम गए और मेरी हिम्मत की दाद देने लगे। सर जी, ये आपका हौसला है जो इस चौकी में अकेले सोते हैं। आपसे पहले जितने भी इंचार्ज तैनात हुए थे या तो वो भाग गए या लापता हो गए, जबकि इनमें से अक्सर रात में पास वाले कस्बे में जाते थे जहाँ नाइट क्लब में मस्ती करते थे, जबकि चौकी खाली रहती थी और वो सबको वापस आते। यहाँ ना तो कोई चेक करने वाला है और ना ही महकमे से यहाँ आना कोई पसंद करता है। सब डरे हुए लोग हैं। हम तो सिर्फ दिन में ड्यूटी करते हैं, मगर सलाम है आपको जो रात को भी अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से सर अंजाम देते हैं। फिक्र माश की वजह से सब करना पड़ता है और मैं कोई अमीरजादा नहीं
मकामी लोग तो दिन में भी फारिस आने से डरते हैं, जबकि पास वाली चौकियों के ऐसे हालात हैं कि कभी कभार दूसरी चौकियों का भी चक्कर लगता था, लेकिन वो भी चौकी नंबर 130 को खतरनाक तरीन चौकी मानते थे। एक रात का जिक्र है, मैं चौकी में सो रहा था। बाहर मौसम बहुत खतरनाक था। शदीद बारिश और तूफानी हवाओं के शोर के साथ आसमानी बिजली की चमक ने जंगल का माहौल पुरस्कार बना दिया था। आज फिर मेरा पालतू भेड़िया चीख रहा था। मेरी आंख खुल गई। मैंने उसे दूसरे कमरे में बंद करके दरवाजे की कुंडी लगा दी और सिगरेट के कश लेने लगा। अचानक बाहर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। रात के इस पहर कौन हो सकता है? शायद किसी मुसाफिर की गाड़ी खराब हो गई हो और इससे मेरी मदद दरकार हो। मैं उठा और दरवाजा खोला। बाहर एक खूबसूरत लड़की बारिश में भीग रही थी। माफ कीजिए, वो दरअसल मेरी कार खराब हो गई है। मदद के लिए आपके दरवाजे पर इसलिए दस्तक दी। मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई, लेकिन कार कहीं नजर न आई। आपकी कार तो कहीं नजर नहीं आ रही। मेरी बात सुनकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। दरअसल यहाँ से काफी दूर मेरी कार खड़ी है। मैं काफी दूर निकल आई हूँ। बारिश रुक जाने तक मैं यहाँ रुक सकती हूँ क्या? इसने सवालिया नजर से मेरी तरफ देखा। यहाँ क्यों नहीं, आप अंदर तशरीफ लाएं। इसके कमरे के अंदर दाखिल होते ही मेरा पालतू भेड़िया जो दूसरे कमरे में बंद था जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो वो लड़की शदीद सहम गई और फौरन पीछे मुड़ गई। अरे मैडम डरो नहीं, वो मेरा पालतू भेड़िया है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और वो तो दूसरे कमरे में बंद है। डरते डरते वो एक कोने में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। इसके कपड़े मुकम्मल तौर पर भीगे हुए थे, जबकि भेड़िया बस ससुर शोर मचा रहा था। देखो मैडम, आपके कपड़े मुकम्मल तौर पर भीग चुके हैं। मेरे ख्याल में आपको सबसे पहले वॉशरूम में अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। ये लो मेरा तौलिया और चादर। मैं जब तक लकड़ियों की आग जलाता हूँ। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वॉशरूम इस कमरे में है। यह सुनते ही वो चीख पड़ी, नहीं नहीं, मुझे इस कमरे में नहीं जाना। मेरा मतलब है वॉशरूम की जरूरत नहीं। अजीब बात है, वो फिर यहाँ किस काम के लिए आई थी? मैंने कहा, मैडम मैं कोई गाड़ी का मैकेनिक नहीं हूँ, इस चौकी का इंचार्ज हूँ और यकीन माने मैं एक शरीफ इंसान हूँ। वो मेरी बात समझ गई और बोली, डर आपसे नहीं, अंदर बैठे भेड़िए से लगता है। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ही अजीब और बेसुरी थी। वो इस तरह बात करती थी जैसे कोई खूंखार शिकार को देखकर घबराता हो। आपको इस वीरान जंगल में डर नहीं लगता? इसके सवाल पर मैं मुस्कुराया और सिगरेट निकालकर कश भरने लगा। नहीं। मेरा मुख्तसर जवाब सुनकर वो भी मुस्कुराई। बहादुर लोग मुझे पसंद है, लेकिन खुदकुशी के लिए चौकी नंबर 130 में क्यों? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। जी मैं समझा नहीं। वो अपनी जगह से उठी और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। तब मेरी नजर इसके पूरे सरापे पर पड़ी। ओह माय गॉड, इसके पांव तो उल्टे थे। चुड़ैल। मैंने सरल से बंदूक उठाई और इसकी तरफ तान कर खड़ा हो गया और फिर वो बला मेरी तरफ मुड़ी। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे हवास पाख्ता हो गए। वो जोर जोर से हंसी। पर ये मेरी बंदूक को क्या हो गया? ट्रिगर दबाने के बावजूद वो नहीं चली, तो मैंने इसे फेंक दिया और खंजर निकाल लिया। लेकिन मेरे हाथ भी सुन्न हो गए। मेरा पूरा जिस्म भी जैसे पैरालाइज हो गया हो, जैसे मैं पत्थर का हो गया हूँ। वो मेरी कैफियत से महसूस हो रही थी। फिर वो मेरे करीब आई और बोली, भाग जाओ यहाँ से, ये जंगल मेरा है। ये आखिरी वार्निंग है। अगली मर्तबा इस जगह के आसपास भी नजर आए तो चीर पाड़ कर रख दूंगी। वो कब की चली गई थी, पर मुझे पता ही ना चला। इसके जाने के घंटों बाद भी मैं वहां बुत पड़ा खड़ा रहा। आखिरकार मुझे होश आ गया और बाहर देखा, लेकिन वहां कोई ज़रूर मौजूद नहीं था। बारिश रुक चुकी थी। मैं वापस कमरे में आया, लेकिन मेरी हालत शदीद खराब थी और मैं बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अगले दिन मुझे होश आया तो मेरे मातहत एहलकार मेरे सर के ऊपर खड़े थे। सर उठिए, क्या हो गया है आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं उठ बैठा और इनको सारे वाक़ये से आगाह किया। मेरी बात सुनकर वो शदीद डर गए और मेरी हौसला अफजाई करने लगे। मुझे शदीद बुखार था। ड्यूड ने फर्स्ट एड बॉक्स में से बुखार की गोली निकालकर मुझे दी। इस चुड़ैल की हैबत अभी तक मेरे हवास पर तारी थी। मैथ्यू बोला, सर मैंने सुना है कि हवाई मखलूक यानी भूत प्रेत भेड़िए से बहुत डरते हैं, और भेड़िया ही वो वाहिद जानवर है जिसे जिन भूत दिखाई देते हैं और वो इनसे लड़ता है। जिस वक्त चुड़ैल लड़की के रूप में आई थी, हमारा पालतू भेड़िया क्या कर रहा था? वो भी दूसरे कमरे में बंद था। हमने दरवाजा खोला और भेड़िया जो एक कोने में बैठा था, हमें जिंदा सलामत देखकर भागता हुआ मेरे कदमों में आकर बैठ गया। शायद इसने चुड़ैल की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, इसलिए पूरी रात जब तक वो चुड़ैल घर में मौजूद थी, वो जोर जोर से चीखता रहा। लेकिन ये मैं सब कैसे भूल गया कि भेड़िया को एक नादीदा मखलूक भी दिखाई देती है। कुछ दिन तबीयत खराब रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बहाल हो गई। मैंने घर वालों से इस बात का जिक्र नहीं किया। दरअसल मैं अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहता था। डैड के गुजर जाने के बाद मम्मा ने बहुत मुश्किलों से मुझे पाला पोसा और पढ़ाया था। अब आखिरी उम्र में मम्मा के लिए कोई भी सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। इसलिए आर्मी सर्विस के दौरान बड़े मुश्किल दौर में भी मैं अपनी मम्मा को सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है का हौसला देता था, और अब भी यही रूटीन है। जबकि मेरी बीवी हमेशा मुझे टोकती रहती कि मुझे अपनी परेशानी बयान करनी नहीं आती। आज तबीयत कुछ बोझल सी थी, इसलिए मैं रात देर तक सड़क पर चहलकदमी कर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो सड़क किनारे किसी गाड़ी के इंतजार में शायद खड़ी थी। मैंने समझा वही चुड़ैल है जो दूसरा रूप बदलकर मेरे सामने खड़ी थी।
सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। मुहावरे के मुताबिक मुझे अब डर लग रहा था, इसलिए मैं डरते कांपते इसके करीब आया। पहले तो मैंने इसके पाँव की तरफ गौर से देखा। जब पूरी तसल्ली हो गई कि इसके पाँव बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल हैं, तब जाकर कहीं मुझे हौसला मिला और बात की। मैडम, आप कौन है और कहाँ से आई हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो बड़ी मासूमियत से बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ और किसी लिफ्ट के लिए खड़ी हूँ। शुक्र है चौकी नंबर 130 वहाँ मौजूद थी, जो कभी कभार मुसाफिर खाने में बदल जाती थी, और ऊपर से मेरी हमदर्दाना तबीयत। खैर, वो मेरे साथ चौकी में आ गई। इसे देखकर भेड़िया भी खामोश रहा। फिर जाकर मेरी पक्की तसल्ली हुई कि वो चुड़ैल नहीं। इसे खाना वगैरह सर्व किया और काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। सुबह होते ही इसने शुक्रिया अदा करते हुए अपनी राह ली। हालात मामूल पर आ गए। एक रात बदकिस्मती से मेरे चौकी के सामने सड़क पर एक होलनाक हादसा हुआ। 2 कारें आपस में टकराई और दोनों में बैठे मुसाफिर फौत हो गए। सुबह तो पुलिस आ गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी वीरान सड़क पर ऐसा खौफनाक एक्सीडेंट होना कैसे मुमकिन था। वो सारे लोग एक ही बात दोहराते कि पिछले सारे वाकयात की तरह इसमें भी किसी गैर मरी मखलूक का हाथ हो सकता है। खैर, जितने मुंह इतनी बातें। अगले दिन महकमा जंगलात वालों ने हमें आर्डर दिया कि आज के बाद हम तीनों एहलकार रात के वक्त इकट्ठे चौकी में ड्यूटी देंगे। मैं तो आदी था, लेकिन ड्यूट और मेथू को चौकी में सोने से मुश्किल पेश आ रही थी, और इनकी वजह भी जायज़ थी। वो दोनों मकामी थे, लेकिन सरकारी ड्यूटी थी, इसलिए फिलहाल मसलतन वो खामोश रहे। एक रात का जिक्र है, हम सब सो रहे थे कि मुझे ख्वाब में अपनी मम्मा नजर आई। मैं ख्वाब में भी सोया हुआ नजर आ रहा था कि मम्मा ने मुझे जगाया, उठो बेटा, जो सब आओ मेरे साथ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं नींद से उठा, तब मम्मा मेरा हाथ पकड़कर काफ़ी दूर ले गई और मुझसे बोली, बेटा ये नौकरी छोड़ दो। ये बात सुनते ही मेरी आंख खुल गई और मुझे इस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब खुद को बेदारी की हालत में चौकी से बहुत दूर पाया। मैं यहाँ किस तरह पहुंचा मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं चौकी पर वापस आया तो मैथ्यू और ड्यूट समेत पालतू भेड़ियों को मुर्दा पाया। किसी ने तीनों को बेदर्दी से चीर पार डाला था। इनकी मौत के साथ ही मैंने भी नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गाँव में आ गया। मुझे तो मामा की दुआओं ने बचा लिया, मगर इस चुड़ैल ने इन तीनों को मारकर अपनी दहशत दोबारा कायम कर ली। ये थी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी और कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।